Hey traders, very warm welcome to you all. It's 8th May 6:30 p.m. and today we are back with another analysis video on Bank Nifty for tomorrow. We'll have a look what levels we discussed yesterday and how did they perform. Did they acted crucially or not? We'll also look what updates we gave to our members in our Telegram group, and we'll also discuss what levels we have to mark for tomorrow and how can we approach the market for tomorrow, right? So without wasting any time, let's straight go to the charts. But before chart, let's once see what did we discuss today in the markets, right? So this was a snippet I posted. That in this I posted yesterday, I think today morning 6:30 a.m. In this I mentioned that if we have closed below 5 EMA and our first target will be 43 200 300 according to 20 EMA, and that came yesterday itself. And today morning I clearly gave a view, and today we'll also discuss. We gave a stop loss today in the market, so we'll discuss what mistake we did and how we got a stop loss in the market, right? So in the morning clearly mentioned there is a strong support at 48,000, the fair value gap. This was a strong upside, so this and this was a fair value gap created, has given its retracement, and I was expecting a pause today. I clearly mentioned in the morning that we are expecting a pause today. Will observe price action at 48,000 will not be that much aggressive as yesterday itself, because as yesterday itself market fell good, right? So today we were expecting a setup, our moving average setup, but that setup gave us our stop loss, and we told our members to exit. Right? We gave I think what stop loss we gave, planning to go along in banks, 15-minute candle sustain, 48 100 we gave, right? So market started sustaining below 48 100, and we took a stop loss of 100 to 120 points, right? So this was a discussion we had in our Telegram group, right? So let's straight go to the charts today, 5 minute charts, and these were some of the levels which we marked yesterday. एंड देखो जो हमने आज गलती की, वो क्या गलती थी, हमने एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करने को बोला था, इस वाली लेवल पे। मैं इस लेवल को एक बार लाइन से मार्क कर देता हूँ। मेरा क्या अप्रोच रहता है मार्केट्स की तरफ, जो लेवल्स मैंने बताए हैं और जो ट्रेड्स मैंने लिए हैं, राइट? So we come and analyze that why that trade, why that setup was successful, or if it gave a stop loss, why it was a bad decision, or why it was a stop loss. So what suggestion we gave. So यहाँ पे मुझे एक अच्छी रिकवरी दिख रही थी, बट इतनी रिकवरी के बाद मेरे को एक बार ये लेवल देख लेना चाहिए था, क्योंकि एक बार दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो मार्केट की प्रोबेबिलिटी थी कि मार्केट यहाँ से एक बार फिर से दे। ये था हमारा पहला मिस्टेक कि हमने यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस जोन नहीं देख पाए हम, राइट? सेकंड मिस्टेक, हमने जैसे सुबह डिस्कस किया कि आज हमारा व्यू रहेगा साइडवेज, क्योंकि मार्केट एक पॉज ले सकता है, क्योंकि प्रायर डे पे एक बहुत अच्छा मूव आ गया था। तो वो भी हमने, हमारा पॉइंट आज हमसे निगलेक्ट हुआ, एंड दैट्स वाई हमने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट की इन द एक्सपेक्टेशन कि मार्केट ये वाला मूव देगा, बट मार्केट ने नहीं दिया, मार्केट टर्न अराउंड, राइट? ठीक है, तो कल हमने यही डिस्कस किया था, और आज सुबह भी मैंने ये अपडेट दिया था। एंड ये हमारा कल एक सपोर्ट जोन था, तो मार्केट आज खुला बहुत। फर्स्ट काफ़ी कैंडल बुलिश कैंडल स्टिक बनाया, फिर सेकंड दो रेड कैंडल स्टिक, एंड फिर इसी ट्रेंड लाइन के हिसाब से चला, और फिर यहाँ से ये जब ट्रेंड लाइन टूटी दो कैंडल स्टिक्स में, ये वाला मूव में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, राइट? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऐसे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे इतने बायर ऑर्डर बिल्ड हो रहे हैं, तो एक स्पाइक क्यों देगा, इसमें हम फिर हमारा ट्रेड बना लेंगे। पर ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, कभी आप सही होते हो, कभी आप गलत होते हो। यू जस्ट हैव टू इंश्योर जब आप गलत हो रहे हो आपके लॉसेस कम हो, राइट? सो आई क्लियर ऑल द ड्राइंग्स एंड वील हैव अ डिस्कशन फॉर टुमारो। सो द मार्केट्स एवरेज क्लोजिंग फॉर मार्केट्स आर 48.21 on the charts. We can see 48.100 because the average closing comes with respect to last 30 minutes, average price of last 30 minutes. So if we look our last 30 minutes as a doji candlestick, so somewhere around the price will come, right? The average price of last 30 minutes, right? So this was our market today. So we'll discuss what markets can do tomorrow, right? So एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, राइट? एंड देखो जब यहाँ पे मार्केट था, जब मार्केट ने ये दो कैंडलस्टिक, ये तीन कैंडलस्टिक मार्केट बना चुका था, राइट? तो मैंने यहाँ पे आज टेलीग्राम में ग्रुप में वही वीडियो डाला।
आई गेव अ सजेशन टू माई मेंबर्स दैट मार्केट ने पहली बार आके क्लोज दिया है 5 AM के नीचे, तो जो हमारा पहला वाइबल टारगेट बनता है 48 300 का बनता है, वो आ चुका है हमारा। और आज मार्केट ने सेकंड कॉन्जिक्यूटिव क्लोज दिया 20 MA के नीचे। तो अब मार्केट के पास जो पहला वाइबल टारगेट एंड सपोर्ट मार्केट को मेरे को देख के लग रहा है वो है 47 724। मार्केट पहला लेवल ये ला सकता है डेली में। ठीक है, अब डेली में देखो क्या सीन बन रहा है कि कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 देयर हैज बीन अ कंटिन्यूस सेलिंग फ्रॉम 5 days एंड मार्केट्स टुडे हैव गिवन अ पॉज। एग्जैक्टली हाउ वी डिस्कस यस्टरडे कि आज एक पॉज का दिन हो सकता है, तो मार्केट ने आज एक पॉज दिया है, राइट। So what I'm expecting from the markets is we have a channel, we have this channel from the downside and we have this upper channel from upside, right? So we have this channel here. Okay, a little bit I'll improve the trend line, yeah. And we even discussed on this candlestick that if the market starts sustaining below this point, or market shows some if market shows some negativeness, we can have a down move towards this direction, right? So this was our discussion when even when these three candlesticks did not form, we anticipated this, but we did not anticipate that it will happen so quickly. My anticipation was kind of like that, but it came like that. Does not matter that much. Okay, so what can we mark the levels? So the first crucial level for me, the target is 47 720। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले 15 मिनट्स में, तो देखो आपको फर्स्ट विल मार्क आर डे लो एंड डे हाई, राइट। सिनेरियो वाइज डिस्कस कर लेंगे। दिस इज आर डे लो एंड डे हाई। सो व्हाट मार्केट्स कैन डू tomorrow, right? So the first level, this is day high, little bit up and little bit low, right? This is day high, this is day low, correct? So first, if the market opens flat to little bit gap up, the first viable target for market will be this one, correct? इफ़ वी आर गोइंग इन अ शॉर्टर टाइम फ्रेम। देखो अब मार्केट क्या कर सकता है, हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट इतने दिन से गिर रहा है, तो मार्केट एक ये वाला टारगेट टच करके मार्केट ऐसे आ रहा है, तो एक मूव ये दे सकता है। मैं मार्केट में ये वाला मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर मार्केट काफ़ी बेरिश रहा तो ये क्रिपल धीरे धीरे अब क्योंकि क्या है, देखो मार्केट टॉप पे नहीं रहा, चैनल के टॉप पे नहीं रहा, तो मोमेंटम इतना तेज नहीं होगा। बट इफ द मार्केट्स हैव टू कम डाउन, दे कैन कम डाउन स्लोली 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 लाइक दिस, राइट। then we have to take a decision at this lower end of the channel that what do we have to do, right? So general expectation, if we look on a longer time frame, our first logical target is 47 724, but if we go to smaller time frames, what we are seeing is for tomorrow, see the first crucial level is this one, 48 180, the level markets took a resistance I think thrice today, 1 2 3। एंड जस्ट रिमेंबर दैट जिस भी लेवल से मार्केट जो प्राइसेस आपकी रेजिस्टेंस ले रही है, अगर 4 बार 5 बार ले लिया तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। सो इफ मार्केट टुमारो closes a 15-minute candlestick above this level 48 180, the first level which we'll see is day high. Market can take a couple of resistance here for a couple of minutes or 5 minutes 15 minutes. This is our level of 48 200. Yeah, sorry, traders, there was a electricity cut in the house. So we'll resume back our recording. Okay. So where were we? Yeah, we were discussing that if the markets open flattish to little bit gap up, the first logical target would be this level from where the markets took resistance thrice today. This will be a crucial level for the markets because आज जो हमारा stop loss लगा था वो भी इसी level से लगा था, right? And मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट ने एक बार 2 बार और 3 बार रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ से ले चुका है। सो अगर मार्केट फ्लैट खुल के हल्का सा गैप अप करता है यहाँ पे, तो एक मार्केट ये वाला करके एक, क्योंकि देखो मार्केट की अब एवरेज क्लोजिंग यहाँ कहीं आई है, तो ये वाला मूव करके मार्केट फिर एक रेजिस्टेंस लेगा यहाँ पे। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है तो ये लेवल को निकाल के यहाँ आएगा, ये हमारा डे हाई था और इसके ऊपर मार्केट निकलता है, तो द फर्स्ट लेवल विच वी विल अचीव इज द नेक्स्ट सप्लाई जोन, और इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो एक बहुत बड़ी फिर शॉर्ट कवरिंग इनिशिएट हो जाएगी आपकी इस लेवल तक। ठीक है,
बट इस लेवल को एक बार देखते हैं अपन। इस लेवल के बाद ये देखो, ये लेवल है 48,400, तो इसको मैं मानता हूँ 48,500 ही मान लो आप, मोटा मोटा 48,500 मान लो। 500 के ऊपर सीधा पहला टारगेट आपका फिर ये आ जाएगा 48,750, जो एक राउंड में आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा रुक के फिर मार्केट ये कर सकता है अगर कल शॉर्ट कवरिंग आती है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। इफ द मार्केट्स ओपन फ्लैट टू लिटिल बिट गैप अप, राइट, तो मार्केट क्या कर सकता है, देखो मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे आई है। अगर मार्केट हल्का सा फ्लैट या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट लिए पहला क्रूशियल लेवल होगा ये स्विंग लो। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक डाउन करता है, इफ द मार्केट्स ब्रेक डाउन दिस लेवल, तो मार्केट का फर्स्ट लेवल हो जाएगा आपका ये डे लो 47,858, एंड इफ दैट लेवल गेट्स broken, right, so the next level, which is 47,724, which we marked because it is 50 MA on daily time frame। अगर हम वापस जाके देखें, so ये 50 MA है, तो थर्ड टारगेट हमारा वही होगा अगर वो लेवल टूटता है तो, राइट। एंड सी इफ दैट लेवल्स ब्रेक, राइट, अगर कल ये लेवल टूटता है, ये लेवल टूटता है, तो 724 पे आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड सपोर्ट हियर, क्योंकि ये एक सपोर्ट है मार्केट पे। मार्केट एक बार आके ये वाला रैली कर सकता है। मार्केट को सिर्फ एक अब एक अच्छा सपोर्ट चाहिए जहाँ पे अच्छे बायर ऑर्डर्स अक्यूमुलेटेड हो एंड अच्छे सेलर्स एग्जिट करें, वहीं से मार्केट एक शार्प रिकवरी कर सकता है, राइट। एंड इफ द मार्केट्स ओपन अ बिग गैप अप, अगर मार्केट्स एक बड़ा गैप अप खोल देता है कुछ इन लेवल्स पे, तो मार्केट कंफ्यूजन में चला जाएगा। और बड़ा गैप अप खुलता है तो इफ़ यू लुक एट डेली कैंडल स्टिक्स, राइट, सो इफ एट ऑल इफ वी फेस अ बिग गैप अप, राइट, तो मार्केट प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग करने की प्रोबेबिलिटी रखता है, एंड विच विल अगेन चेंज द ट्रेंड हियर, राइट। If the markets open a big gap down, like let's suppose markets have closed here, right, if the markets open big gap down and again we can see a closing like this till 50 MA, I'm not expecting, if just remember अगर मार्केट कल 50 MA के नीचे क्लोज हो गया तो फिर फ्राइडे को हमको ये टारगेट देखने को मिल सकता है 47,000, दैट विल बी द अल्टीमेट सपोर्ट, दैट इज़ अ सपोर्ट एंड दैट इज़ अ चैनल सपोर्ट ऑल्सो। वहाँ पे एक बार मार्केट वापस पहुँच ले सकता है। तो हमने सारे सिनेरियोज डिस्कस कर लिए। मैं एक बार आपके लिए जो जोन्स है वो मार्क करता हूँ। देखो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ कि आज जो हमने गलती की, हमारा जो सुबह का हमारा जो आउटलुक था मार्केट का, दैट मार्केट कैन टेक अ पॉज, उसके बाद भी हमने जाके ट्रेड किया बिकॉज मेरे को ट्रेड दिख रही थी और मैंने ट्रेड दी बैंक निफ्टी में, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि आपकी देखो 100% आपको दुनिया में कोई ट्रेडर नहीं मिलेगा जो 100% आपको हर बार सही ट्रेड दे। लग गया स्टॉप लॉस, इट्स अ पार्ट, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो आप आउट हो गए, ऐसा तो नहीं है ना कि आप क्रिकेट खेलने के बाद कभी आउट ही नहीं हुए, करेक्ट। सो इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग दैट एस एल आपका लग रहा है, और आपको खुश होना चाहिए कि आपका एस एल लग रहा है, क्योंकि आपको वहाँ पे चीज़ें सीखने को मिलती है, राइट। So these were our expectations. I will mark the levels which will act as a good resistance and support for tomorrow, right? As I mentioned, these red levels will be your resistance zone, and your these green levels will be your support zones, right? एक बार जनरल आउटलुक डिस्कस कर लेते हैं मार्केट का, राइट। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो अभी ऊपर से देखो काफ़ी अच्छी सेलिंग आ चुकी है। एक पुल बैक, लॉजिकल पुल बैक एक आना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद इफ़, अब देखो दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या तो इस ट्रेंड का रिट्रेसमेंट करके ये यूं ट्रैवर्स करे, बट ये मोर देन 50% हो चुका है रिट्रेसमेंट। सो अब मेरे को नहीं लगता कि ये बाय ऑन डिप रहा है, तो अब डिप आ चुका है, एक बाय आएगा एंड फिर मार्केट यहाँ से इस पोजीशन से या इसके 50 फिबोनाची 50 से वापस सेल होने के लिए आ सकता है, राइट। सो दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन फॉर कमिंग डेज। लेट्स सी कि मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। मैंने आपको लेवल्स मार्क करके बताए हैं। एंड मेरा कल एक्सपेक्टेशन देखो डेटा और चार्ट्स को देख के, कल भी मैं अगर फ्लैट गैप फ्लैट खुलता है तो कल भी मैं एक रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कल मेरे पास मतलब पर्सनल एक्सपेक्टेशन मेरा ट्रेंडिंग मूव का नहीं है, राइट। ट्रेंडिंग आएगा, आपको अल्टीमेट बुलिश कब होना है, 48,500 के ऊपर अल्टीमेट बुलिश। जब तक 48,500 या मार्केट ऑन 5 मिनट्स और 15 मिनट्स आपकी प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन ना करने लग जाए 200 EMA के ऊपर, तब तक आप अल्टीमेट बुलिश नहीं हो सकते। जस्ट कीप दैट इन माइंड। तब तक मार्केट आपका सेल ऑन राइज टू
अभी क्योंकि सेल ऑन राइज हो चुका है मार्केट, तो अभी साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी है, राइट. सो दीज वर द सम लेवल्स, दीज वर सम लेवल्स ट्रेडर्स. आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगता हो. इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, जस्ट लीव अ लाइक ऑन आवर वीडियो. एंड हमारी हाउ टू ट्रेड प्ले लिस्ट है, वो जाके आप देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होएगा दैट हाउ टू यूज़ दीज मूविंग एवरेजेस वाइल ट्रेडिंग, राइट. That's it. That's all for today, traders. Stay safe. Thanks.